Hello students, in this video we will discuss about the dissolution of partnership firm and their related aspect. In case of dissolution of a firm, it is assumed that all the assets of the dissolved firm are realized at once on the date of dissolution and accounts of all the partners, that is creditors and partners, are settled on the same date. अच्छा, डिसोल्यूशन में ये एक एग्जाम्पशन होती है कि सारा की सारा जो भी कैश रियलाइज्ड होना है वो रियलाइज हो चुका है कब, डिसोल्यूशन की डेट पे, और जितने लोगों को हमको पेमेंट करना था दैट इज क्रेडिटर्स और पार्टनर्स को, उन सबको पेमेंट हो चुका है. बट दिस एजम्पशन इज रॉन्ग. एक्चुअली में कि डिसोल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन डिसोल्यूशन हुआ उस दिन सब रियलाइज हो जाए. नॉर्मली एसेट्स आर रियलाइज्ड ग्रेजुअली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. एसेट्स को रियलाइजेशन के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है. जैसे ही कैश का रियलाइजेशन हो जाता है वैसे ही हम लोग पार्टीज को पेमेंट कर देते हैं. लेकिन दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस बिकॉज एसेट्स रियलाइजेशन टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सो when as soon as the cash is realized, the payment are made to the liabilities, the payment are made to the other parties, and the accounts are being settled. Now this type of distribution of cash, that means as soon as the cash is realized and payment is made, this process of distribution of cash is known as piecemeal distribution. So this is the main topic. Piecemeal distribution is a process of distribution of assets realized, and then payment to the creditors, okay, or other liabilities. Now this payment in piecemeal distribution is made in following order, okay. The order is as follows: first preference is given to this, second is this, and then last, okay. So we have to make payment according to the given preferences. Now see the preferences what are given here. Payment to creditors and other external liabilities. First payment is made as soon as the cash is realized. First payment will be made to the creditors and other external liabilities. That means secured creditors, unsecured creditors, preferential creditors. सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो इन सबको दी जाएगी. फिर अगर कुछ कैश आता है या फिर कुछ कैश बच जाता है तो किसको पेमेंट किया जाएगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट को. अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में कोई लोन दे रखा है तो नेक्स्ट पेमेंट विल बी मेड टू द पार्टनर लोन अकाउंट. अगर इन दोनों का पेमेंट करने के बाद भी कुछ पैसा रियलाइज होता है या कुछ पैसा रिमेनिंग बच जाता है तो उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे? फॉर द पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. So this is the last preference. Last preference is given to the capital to the partners account proportionately. This is the order of payment. Now for the distribution of payment of capital to the partners, two methods are followed. First is proportionate capital method, that is also known as surplus method. Second method is maximum loss method. First we will discuss the first proportionate capital method. Now for discussing the distribution of proceeds, that means the distribution of cash realized from assets, this format is used, okay. Now we'll understand this format with an example. The question number 1 of your textbook will solve that question by both the methods. Okay, see, this is the question. First question: a partnership firm has 3 partners X, Y, Z with capital of 20,000, 10,000 and 10,000. Creditors amounted to rupees 20,000 and assets is 60,000. इसका मतलब 20,000 की तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है और कोई लाइबिलिटीज के अंदर है नहीं. तो क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के बाद हम लोगों को तीनों पार्टनर को कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है. अब एसेट्स कैसे रियलाइज हो रहे हैं वो देखिए. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रही है 20,000, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20,000 एंड फाइनल रियलाइजेशन 10,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2:1. शो द पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रियलाइजेशन ऑन मैक्सिमम कैपिटल मेथड एंड मैक्सिमम लॉस मेथड. दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है. ओके, नाउ दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स टेबल. Particulars, creditors. Because in question only creditor is the external liability,
देयर इज नो अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। सपोज इन क्वेश्चन ये गिवन होता कि एक्सेस लोन अकाउंट, तो हम यहाँ पे पहले क्रेडिटर का कॉलम बनाते। अच्छा, ये कॉलम बनेंगे प्रेफरेंस के हिसाब से, जो हमने प्रेफरेंस ऊपर पढ़ी। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर का कॉलम बनाते, फिर किसको प्रेफरेंस दी जाती है, पार्टनर लोन को, तो फिर सेकंड कॉलम बनता है एक्सेस लोन अकाउंट। उसके बाद बनता है एक्स वाई जेड के कैपिटल का कॉलम। लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ क्रेडिटर्स गिवन है, तो सबसे पहला कॉलम क्रेडिटर का और उसके बाद सीधा पार्टनर्स के कैपिटल को पेमेंट करना है। तो एक्स वाई जेड सीधा पार्टनर के कैपिटल का पेमेंट हो जाएगा। ओके, now according to first method, proportionate capital method, first we have to make this working note, that is the calculation of absolute surplus। जो सबसे पहले कैश रियलाइज होगा उससे हम क्रेडिटर्स का पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट होगा कैपिटल का पेमेंट। तो कैपिटल का पेमेंट जो है वो प्रोपोर्शनेटली किया जाता है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड में। प्रोपोर्शनेटली कैसे, सबसे पहले हम एब्सोल्यूट सरप्लस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, व्हाट इज एब्सोल्यूट सरप्लस? इट इज द कैपिटल means amount payable to partners whose capital are relatively in excess of their profit sharing ratio। That means जिस पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया है वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज्यादा लगाया है, कंपैरिजन रिलेटिवली जो ज्यादा लगाया है अपने रेशियो से दूसरे पार्टनर्स के मुकाबले में, तो उसको पहले पेमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए हमें एब्सोल्यूट सरप्लस कैलकुलेट करना है। तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये उसका प्रोसेस है, ये हम देखेंगे आगे। देखिए, हमने ऐसे टेबल बनाई है, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स। बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, हमने ऑलरेडी लिख दिया है बैलेंस 20,000 10,000 10,000। 3:2:1 का रेशियो है। हियर वी विल राइट 3:2:1। समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमें बेस कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेस कैपिटल, उसका ये देखिए मेथड। सबसे पहले एक्स की कैलकुलेट देखें, 20,000 उसका रेशियो है 3, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 3, इतने रेशियो के लिए वो लाया 6,667। फिर वाई का देखेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 2, 5,000। फिर जेड का देखेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 1, 10,000। अब ये जो तीनों हमने कैलकुलेट की है, इसमें से सबसे मिनिमम देखेंगे हम। सबसे मिनिमम अमाउंट कौन सी है, ये 5,000। ये 5,000 मिनिमम अमाउंट है, ठीक है। तो दिस इज दिस वी विल चूज मिनिमम अमाउंट ऑफ द 3, 5,000। फिर क्या करेंगे हम, इस बेस कैपिटल को इसमें से लेस करेंगे, दैट उसी रेशियो से मल्टीप्लाई करके, इनके रेस्पेक्टिव रेशियो से मल्टीप्लाई करके। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 15,000 लेस कर देंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 10,000, 10,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 5,000 यहाँ पे लेस हो जाएगा। ओके, लेस करने पे हमारे पास आया यहाँ पे 5,000, यहाँ पे आया डैश और यहाँ पे आएगा 5,000। ओके, अगेन वी विल कैलकुलेट बेस कैपिटल। Now here only X and Z. This balance, this is known as surplus. Okay, this is our surplus. There is no surplus. Now we will again calculate base capital. The same procedure will be followed only for X and Z because now it is nil. Now we'll calculate X. X is equals to 5,000. We will take this 5,000 divided by X's ratio is 3. That comes to 1,667. For Z, 5,000 divided by 1, that comes to 5,000. Minimum of both is 1,667. Okay, we will deduct 1,667 from both. Now 1,667 will be multiplied by 3. Okay, now we will again multiply this minimum with their share. 1,667 multiplied by 3 is 5,000. This comes to dash. Here it is already dash. Then 1,667 multiplied by 1 is 1,667. 5,000 minus 1,667 is 3,333. Now this is the last surplus. This is the absolute surplus. Now we will decide the preferences. This is the absolute surplus. That means first preference will be given to Mr. Z. First preference here, mark first preference number 1.
फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मिस्टर जेड, दैट इज 3,333। जैसे ही कैश रियलाइज होगा सबसे पहला पेमेंट क्रेडिटर्स को होगा, वो तो हमें पता ही है। उसके बाद XYZ में तीनों में से सबसे पहले 3,333 जेड को दे दिए जाएंगे। ओके, then second preference will be given to X and Z. This is the second preference. 5,000 X को और 1,667 Z को दे दी जाएगी। उसके बाद जो भी बचेगा वो इन तीनों पार्टनर्स में इनके रेशियो में बढ़ जाएगा इस वाली प्रेफरेंस में। दिस इज द थर्ड प्रेफरेंस, दैट मीन्स 15:10:5, दैट मीन्स 3:2:1। इफ एसेट्स, इफ अगर इन दोनों का पेमेंट ये प्रेफरेंस के बाद कुछ पैसा बच जाता है या बाद में और रियलाइज होता रहता है कोई पैसा एसेट से, तो उसके बाद हम उसका पेमेंट जो होगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2:1 में। तो इन दोनों को सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी, फिर बाद में कुछ भी पैसा आएगा तो आपस में 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दिस इज द प्रेफरेंस टेबल। नाउ विल सी कि पेमेंट किस तरीके से किया जाएगा। दिस इज अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स। पर्टिकुलर्स क्रेडिटर्स XYZ। ओके, सबसे पहला बैलेंस हम लोग लिखेंगे कि क्रेडिटर्स को कितना का पेमेंट करना है, 20,000 का। X का बैलेंस कितना है, Y का कितना है और Z का कितना है। ये बैलेंस हमने क्वेश्चन में से देख के लिखा है। फर्स्ट रियलाइजेशन जो हो रहा है एसेट का वो हो रहा है 20,000 का। तो सबसे पहली प्रेफरेंस हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, सबसे पहले क्रेडिटर्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। तो सबसे पहले जो पेमेंट आया है 20,000 का, वो एज इट इज हम किसको दे देंगे, 20,000 हम लोग एज इट इज क्रेडिटर्स को दे देंगे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट रियलाइजेशन 20,000 का पेमेंट हो गया। नाउ बैलेंस कितना कितना बचा, क्रेडिटर्स तो पूरे खत्म हो गए, डैश X का पेमेंट नहीं हुआ, Y का नहीं हुआ, तो इनका बैलेंस वापस कैरी फॉरवर्ड हो गया 20, 10 एंड 10,000। नाउ सेकेंड रियलाइजेशन आ रही है, हमारी इंस्टॉलमेंट आ रही है सेकेंड, वो है 20,000 की। 20,000 में हम लोगों ने वो जो टेबल बनाई थी उसके अंदर हम लोगों को पता है कि रियलाइजेशन में क्या करना है। सबसे पहले जो भी आएगा उसका 3,333 रुपये तो हमको Z को देने हैं। उसके बाद 5,000 और 1,657 रुपये हमें Z को देने हैं, और फिर जो बचेगा वो इस रेशियो में जाएगा 3:2:1 के अंदर। तो इसी तरह हमने पेमेंट किया इसके अंदर। देखिए आप लोग, जो 20,000 है उसमें सबसे पहला वर्किंग नोट लिखा है मैंने यहाँ पे, तो वर्किंग नोट के बेसिस पे फर्स्ट पेमेंट इनको कुछ नहीं मिलेगा X और Y को। फर्स्ट पेमेंट होगा 3,333 का Z को, ठीक है। सेकेंड हमारी प्रेफरेंस थी 5,000 और 1,667, वो हम लोग दे देंगे। X को 5,000 का था और Y का उसमें कुछ नहीं था, डैश, और Z को 1,667 के सेकेंड प्रेफरेंस। अब ये दोनों मिला के हुए 5,000, ये 5,000। 10,000 का तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, लेकिन हमारे रियलाइज हुए थे 20,000। 10,000 अभी और पड़े हमारे पास, तो एक्सेस में और भी कुछ होगा। तो हमने वर्किंग नोट में ये डिसाइड किया था कि उसके अलावा कुछ भी आएगा तो वो कौन से 3:2:1 के रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो ये देखिए जो एक बाद की 10,000 है वो 3:2:1 के रेशियो में इन तीनों में बांट दिए, खत्म। ये तो बैलेंस था, इतना इतना हमने इनको पेमेंट कर दिया। तो नाउ अब बैलेंस कितना बच गया इनके पास, 20,000 में से ये पेमेंट हो गया तो बैलेंस 10,000, 10,000 में से ये पेमेंट हो गया, बैलेंस 6,667, 10,000 में से इतना पेमेंट हो गया तो बैलेंस बचा 3,333। एक इंस्टॉलमेंट अभी और बाकी है। अगर क्वेश्चन में और इंस्टॉलमेंट नहीं गिवन होती तो यहाँ क्वेश्चन खत्म, बैलेंस इतना बच गया। इंस्टॉलमेंट है 10,000 की, सिर्फ 10,000 की इंस्टॉलमेंट आई है। वर्किंग नोट के हिसाब से और भी अगर पैसा आता है तो उसको हमेशा 3:2:1 में बांटना है। तो और पैसा आ गया एक्स्ट्रा तो 3:2:1 में उसको भी बांट दिया जाएगा। 5,000, 3,337, 1,667, इतना पेमेंट करना बाकी था, इतने का और पेमेंट हो गया है, लेकिन अभी भी ये बैलेंस बाकी है और कोई रियलाइजेशन नहीं है, एसेट से हमें और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये हमारा रियलाइजेशन लॉस हो जाएगा। दैट इज फॉर द प्रपोर्शनेट कैपिटल मेथड। सो दिस इज द रियलाइजेशन लॉस। बस हमें यहाँ पे प्रपोर्शनेट कैपिटल में यही चीज़ ध्यान रखनी है, जो हम एब्सोल्यूट सरप्लस डिसाइड करेंगे उस बेसिस पे हमें यहाँ पे रियलाइज वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रेफरेंस के हिसाब से पहली प्रेफरेंस Z को थी, हमने कर दी। सेकेंड प्रेफरेंस इन दोनों को थी, X और Z को, वो भी हमने कर दी। थर्ड प्रेफरेंस में ये था कि अब जो भी पैसा आएगा वो हमेशा हमें कौन से रेशियो में करना है, 3:2:1 में। तो इसके बाद अब जो भी पैसा आएगा, इसके बाद सपोज थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद और इंस्टॉलमेंट आती तो वो भी हम 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते। ओके, नेक्स्ट वीडियो मैं मैक्सिमम लॉस मेथड का बना के भेजूंगी। थैंक यू।